औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to deliver another topic that a very important topic for both 11th and 12th class, even for 10th class also, that is the sentence structure of the sentence. Today we will try to cover the first part, that is the sentence and its types, and afterwards we will discuss the transformation of sentence, how to convert sentences. First we will give some little bit about what actually the sentence is and one of its type, that is simple sentence. Sentence होता क्या है और उसके बाद जो है types of sentence, लेकिन on the basis of structure there are two-way classification of sentence, on the basis of function and on the basis of structure. यहाँ हमें जो है on the basis of structure के बारे में पढ़ना है, simple, compound and complex sentence. What actually is sentence? A sentence is a group of words giving a complete thought. अगर हम sentence की बात करें तो sentence group of words होते हैं जो हमें complete thought provide करते हैं. थोड़ा सा और खोल के बताएं. A sentence must contain a subject and a predicate and give us a complete thought. अब यहाँ दो important points हैं. One is subject and another is predicate. Sentence में दो चीज़ें important है. एक sentence जो है इसमें group of words होते हैं, लेकिन सबसे important क्या है? Subject और predicate होना ज़रूरी है. Now what actually is subject and what is predicate? Subject होता क्या है? Subject in other words means the doer of an action. Subject means the person or thing. Subject means the person or thing the sentence talking about. While as predicate means what the subject does. Yeah, what the subject is. Yeah, in other words predicate means the action done by the subject. और इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड्स में हम यही बताएं तो सब्जेक्ट मीन्स व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट. इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट मीन्स व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट, व्हाइल एज प्रेडिकेट मीन्स एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट मीन्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, और इन अदर वर्ड्स प्रेडिकेट मीन्स व्हाट द सब्जेक्ट डज or what the subject is. That is the very important point. I will give you some examples. Subject, who or what the sentence about, like Bashir killed the snake. Who killed the snake? Bashir killed. That means the subject Bashir. Like buses, or in other words buses are closed nowadays. What is closed nowadays? Buses are closed. That is the subject. That means अगर आपको सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है तो फिर हु और व्हाट जो है यही क्वेश्चन करके जो है आपको वहाँ मिलेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट. while as what actually the predicate means what the subject does or what the subject is. सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, that is the predicate. like Bashir killed the snake. सब्जेक्ट ने क्या किया? बशीर ने क्या किया? killed the snake. that is the predicate. और he is a boy. he क्या है? what the subject is a boy. that is predicate. that means simple words में यही याद रखना होगा कि सेंटेंस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट वो होता है लाइक हु और व्हाट जो सेंटेंस में है. हु और व्हाट से जो है सवाल करके वो पर्सन भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है. और इन अदर वर्ड्स प्रेडिकेट मीन्स उस सब्जेक्ट ने क्या किया है, उसने कोई काम किया या क्या है वो, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेडिकेट. सिंपल वर्ड्स में यही बताएं तो सब्जेक्ट मीन्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, व्हाइल एज प्रेडिकेट मीन्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट द सब्जेक्ट इज. और a sentence is a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and a predicate, conveying a statement, question, exclamation or command, and consisting of a main clause or sometime one or more dependent clause. अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेट ऑफ वर्ड्स कंप्लीट इन इटसेल्फ. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट इन इटसेल्फ होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में जो है किसी और पर डिपेंडेंट ना होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना ज़रूरी है, कंप्लीट थाट होना ज़रूरी है, तब जाके जो है इट इज़ अ सेंटेंस. दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसके बाद जो है कंप्लीट सेंस और साथ में जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. दीज आर सम पैरामीटर्स थ्रू विच you will say that is a sentence.
और फिर कुछ सेंटेंसेस जो है ख़त्म होते हैं स्टॉप पर या पीरियड पर, फुल स्टॉप पर, कुछ ख़त्म होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पर, कुछ ख़त्म होते हैं कमांड पर, कुछ ख़त्म होते हैं स्टेटमेंट पर, कुछ ख़त्म होते हैं क्वेश्चन मार्क पर। दैट मीन्स दीज आर ऑल सेंटेंस। और सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में एक मेन क्लास होता है डेफिनेटली, और कभी कभार जो है कुछ साथ में डिपेंडेंट क्लास भी होती है। लेकिन सेंटेंस जो है, अगर हम ओल्डन डेज की डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस बिगिनस विद ए कैपिटल लेटर, एंड्स ऑन ए फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और एन इंट्रोडक्शन मार्क या क्वेश्चन मार्क। अगर हम ओल्डन डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं या तो फुल स्टॉप पर, या तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पर जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली डेफिनेशन जो है सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटेंस जो है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एटलीस्ट ए प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी, एंड ए कंप्लीट थॉट, दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सिंपल सेंटेंस, इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। What actually is simple sentence? A simple sentence consists of a subject and a verb and a predicate. एक simple sentence में at least एक subject होता है, at least एक verb होता है। एक sentence में एक subject होता है, एक verb होता है और एक complete thought हमें वो provide। लेकिन एक sentence में subject और verb और साथ में complete sense, that is the criteria to qualify a simple sentence. A simple sentence consists of just one main class. In other words, अगर हम इस डेफिनेशन को लें, क्लासेस हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो क्लास में हमने यही पढ़ा है कि एक मेन क्लास में भी ऐसा ही होता है। एक मेन क्लास में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है और कंप्लीट सेंस। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स सिंपल सेंटेंस इज समटाइम्स कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लास, और इन अदर वर्ड्स इंडिपेंडेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल सेंटेंस। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लास में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लास जो है बिल्कुल एक जैसा है। लाइक ही लाफ्ड, कंप्लीट सेंस, सब्जेक्ट वर्ब, द डॉग बार्क्स, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, दे आर फ्रेंड्स, ही किल्ड द स्नैक, एक सेंस, कंप्लीट सेंस, जस्ट गिव अस वन मैन आइडिया। एक बात और याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंस जस्ट गिव अस वन मैन आइडिया, एक मेन आइडिया जो है सिंपल सेंटेंस में होता है। तो एटलीस्ट जो है ये याद रखना ज़रूरी है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या याद रखना है, सब्जेक्ट, एटलीस्ट वर्ब एंड ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट। सब्जेक्ट, एटलीस्ट ए सब्जेक्ट, ए वर्ब एंड ए कंप्लीट थॉट, ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास की जो है डेफिनेशन लें तो उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक कंप्लीट सेंस। सेम इज़ द केस फॉर सिंपल सेंटेंस आल्सो। अब यहाँ पर जो है 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इनसे जो है आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। तो सिंपल सेंटेंस जो है एटलीस्ट मैंने कहा है कि एटलीस्ट जस्ट कंटेन्स वन सिंगल आइडिया, इसमें हज़ारों एग्जांपल्स दे सकते हैं। और लेकिन ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, द यूज़ ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट्स, कंपाउंड वर्ब्स, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड अदर एलिमेंट्स हेल्प द सिंपल सेंटेंस, बट सिंपल सेंटेंस ऑफन आर शॉर्ट। अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस में, कभी कभार जो है कंपाउंड सब्जेक्ट मीन्स मोर देन वन सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, कंपाउंड सब्जेक्ट, बट कंटेन्स ए सिंगल आइडिया, इट इज स्टिल ए सिंपल सब्जेक्ट। कंपाउंड वर्ब्स, अगर कंपाउंड वर्ब्स मीन्स मोर देन वन वर्ब अगर इस्तेमाल हुआ एक सिंपल, बट कंटेन्स ए सिंगल अंडरलाइंग आइडिया, इट इज स्टिल ए सिंपल सब्जेक्ट। और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस अगर इस्तेमाल हुए, भले ही ये सेंटेंस बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बट कंटेन्स ए सिंगल आइडिया, इट इज स्टिल ए सिंपल सब्जेक्ट। ये याद रखना है। इससे सेंटेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन सेंटेंस जो है अगर इसमें एक ही आइडिया है, अगर 2 सब्जेक्ट्स होंगे, 2 वर्ब्स होंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल हुआ हो, बट कंटेन्स ए सिंगल आइडिया, अगर इसमें एक ही आइडिया है, देन इट इज स्टिल ए सिंपल सेंटेंस। ये फिर भी सिंपल सेंटेंस है। नाउ कुछ एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि ये सिंपल कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड वर्ब क्या होता है, और साथ में जो है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, कुछ एग्जाम्पल्स हमने ली, इससे क्लियर होगा। लाइक बशीर एंड खालिद met each other, या बशीर एंड खालिद आर फ्रेंड्स, बशीर एंड खालिद आर प्लेइंग क्रिकेट, या बशीर एंड खालिद आर इन द सेम क्लास। अगर हम इस एग्जाम्पल में लें तो इस एग्जाम्पल में 2 सब्जेक्ट, दैट मीन्स कंपाउंड सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, बशीर एंड खालिद। अगर हम आइडिया की बात करें जो है एक ही आइडिया इसमें है, तो फिर इट इज स्टिल ए सिंपल सेंटेंस। भले ही इसमें सब्जेक्ट्स 2 हैं, बट
इट कंटेन्स ए सिंगल आइडिया एंड इट इज स्टिल ए सिंपल सेंटेंस। बिकॉज सिंपल सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें प्रेडिकेट होता है, इसमें वर्ब होता है, एंड कंटेन्स ए सिंगल आइडिया, सिंगल थॉट, सिंगल सिंपल थॉट, देन इट इज कॉल्ड एज ए सिंपल सेंटेंस। भले ही इसमें सब कंपाउंड सब्जेक्ट्स हो, इस एंड से जो है परेशान ना हो कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल, इट इज स्टिल ए सिंपल सेंटेंस अगर इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट्स। बशीर एंड खालिद मेट ईच अदर, बशीर एंड खालिद आर फ्रेंड्स, बशीर एंड खालिद आर playing each other, Bashir and Khalid are in the same class. Now next, I looked for Bashir and Manzoor at the bus station. अगर हम यहाँ बात करें at the bus station की, that is the prepositional phrase, at the bus station. ये जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, but it contains a single idea and it is still a simple sentence. Like I looked for Bashir and Manzoor. यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं और साथ में प्रीपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, बट I contains a single idea, it is still a simple sentence. I looked for Bashir and Manzoor at the bus station. भले ही इसमें दो लाइन्स लग रहे हैं, क्योंकि हमने जो है यही सुना है कि कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस छोटा होता है, कंपाउंड सेंटेंस उससे बड़ा होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस इससे भी बड़ा होता है। नहीं, ऐसी कोई डेफिनेशन है नहीं, बल्कि डेफिनेशन जो है इट कंटेन्स, अगर इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंटेन्स ए सिंगल आइडिया। भले ही इसमें जो है अगर हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल किया हो, कंपाउंड सब्जेक्ट इस्तेमाल किया हो, कंपाउंड वर्ब्स इस्तेमाल किया होता है, इट इज़ स्टिल ए सिंपल सेंटेंस। जैसे हमने इसमें बात करें तो बड़ा लग रहा है, बट कंटेन्स ए सिंगल आइडिया, इट इज़ स्टिल ए सिंपल सेंटेंस। आई लुक्ड फॉर बशीर एंड मंजूर एट द बस स्टेशन। थर्ड वन, द डॉग बार्क्ड एंड रैन। अगर इसमें बात करें तो इसमें कंपाउंड वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कंटेन्स ए सिंगल आइडिया। हम सिर्फ डॉग की बात करें, बार्क्ड एंड रैन, ये दो वर्ब्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, बट इट कंटेन्स ए सिंगल आइडिया, इट इज स्टिल ए सिंपल सेंटेंस। दैट मीन्स यहाँ पर हमने कंपाउंड वर्ब्स का इस्तेमाल किया। द डॉग बार्क्ड एंड रैन, द डॉग बार्क्ड एंड रैन, द डॉग बार्क्ड एंड रैन। इसी तरह जो है हमीद एंड खालिद प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, यहाँ पर भी हमने कंपाउंड सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, दैट इज हमीद एंड खालिद। दैट मीन्स हमीद और खालिद जो है हर रोज़ जो है शाम को खेल रहे हैं। दैट मीन्स दे आर, इट कंटेन्स ए सिंगल आइडिया एंड इट इज स्टिल ए सिंपल। भले इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो या कंपाउंड वर्ब्स इस्तेमाल हुआ हो, बट कंटेन्स ए सिंगल आइडिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिंगल आइडिया है, सब्जेक्ट है, वर्ब इस्तेमाल हुआ है, कंप्लीट सेंटेंस है, इट इज स्टिल ए सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करें, डिस्पाइट मेनी हार्डशिप्स आई अचीव्ड द गोल। डिस्पाइट मेनी हार्डशिप्स जो है दैट इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। बावजूद इसके मुझे जो हार्डशिप्स जो है फेस करनी पड़ी, बट आई अचीव्ड द गोल। सेंटेंस जो है इसमें एक ही आइडिया है, सिंगल आइडिया है, लेकिन इसमें जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स इट इज स्टिल ए सिंपल सेंटेंस। डिस्पाइट मेनी हार्डशिप्स आई अचीव्ड द गोल। नेक्स्ट, ड्यू टू बैड वेदर स्कूल्स वर क्लोज्ड, या ड्यू टू कोरोना वायरस स्कूल्स वर क्लोज्ड, या ड्यू टू वी कैन से स्ट्राइक स्कूल्स वर क्लोज्ड। यहाँ जो ड्यू टू बैड वेदर है, that is the prepositional phrase. Schools were, it contains a single underlying idea, it is still a simple sentence, it is still a simple sentence. Last one, he caught red-handed by the police, he caught red-handed by the police, that is still a simple sentence because it contains a single underlying idea. That means to somehow we had discussed about the simple sentence. Simple sentence होता क्या है, उसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें जो है, कभी कभार हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभार जो है हम सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी कभार जो है हम कंपाउंड वर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे जो है सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा जो है लंबा हो सकता है, लेकिन इट इज़ स्टिल ए सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इट कंटेन्स ए सिंगल आइडिया, इट कंटेन्स ए सिंगल थाट। ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे तो कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लास होते हैं, यहाँ पर दो क्लास नहीं बल्कि दो सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स होते हैं, दो वर्ब्स होते हैं, लेकिन वहाँ दो क्लासेस होते हैं। लेकिन अगर हम क्लास की बात करें तो सिंपल सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स ए सिंगल क्लास, ऑलवेज कंटेन्स वन मैन क्लास, ऑलवेज। ये याद रखना है, भले ही उसमें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो, इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट्स हो, कंपाउंड वर्ब्स हो, बट इट ऑलवेज हैज़ जस्ट वन मैन क्लास। थैंक यू।